Hi friends, a very warm welcome to all of you. Today we are going to discuss about how percentage and ratio and proportion they merge, and those concepts are used to make questions which at times puzzles you because you do not understand that what exactly has to be used. Are you going to approach with the percentage basics that we have learned, or we are going to approach through the ratios and proportion? So let's understand that how each question has to be dealt with. And we'll also, as a bonus question, we'll also be discussing about a particular question when a number is mistakenly written as some other number. In that case, how we calculate the percentage in terms of the mistake that has been committed. So let's share the screen. I'll be giving you the two questions right away. And you know how to go about it, right? The way we go about this question is very simple. First, you need to pause this video right now, try and solve these two questions. And after you've given it a fair attempt, then come and you can watch the solution and see that how your solution matches with the solution that I'm trying to portray over here. So let's get started, friends. Let's have a look at the very first question. Now, what does the first question say? The first question talks about two-person Abhi and Ash, right? We are not talking over here about Abhishek Bachchan and Aishwarya Bachchan, of course. They don't need to do jobs, and hence they are not getting such paltry salaries. So don't worry about it. We are talking over here two people, Abhi and Ash, and together their salary is 28,000. Now, if Abhi and Ash's salary increased by 25% and 12.5% respectively, then the new salary of Ash becomes 120% of the new salary that of Abhi. नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पर बार बार अभी और ऐश के सैलरी को कंपेयर किया जा रहा है और उनका सैलरी को इंक्रीज भी किया जा रहा है. सो व्हाट आई डू ओवर हियर माय फ्रेंड इज दैट if I start solving this question, let's have a table. तो रेशियो प्रोपोर्शन में हमने जो डिस्कस किया था दैट if we talk about अभी and we talk about Ash, these are two people that we are talking about. अब ये जो दो चीज हम बात कर रहे हैं, इस दो चीज में there are two components. What is the component? The first component is that we are talking about what is their old salary. उनका पुराना सैलरी कितना था, right? So we will write over here the old salary, and then we are going to discuss about the new salary जो increase होके आया, correct? Now first of all it says that together दोनों का salary जो था, तो total salary जो था दोनों का मिला के that was 28,000. So total, if I add it up, then this amount becomes 28,000, and that is very clear in the question. Now it says that Abhi's salary and Ash's salary increased by 25%. Now if you remember my friends, अगर हम लोग इसको रेशियो प्रोपोर्शन के बेस मेथड से डिस्कस करें जो हम लोग परसेंटेज में डिस्कस किए थे, we discussed 25% as what? As 1/4, and we also discussed 12.5% as what? As 1/8. तो हमने डिस्कस किया था जब 25% इंक्रीज होता है तो बेस को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं 4, बेस को हम पकड़ लेते हैं 4, जो इंक्रीज्ड वैल्यू है वो हो जाएगा 1 मोर, सो दैट वो हो जाएगा 5. अगर डिक्रीज होता तो 1 लेस, दैट वुड हैव बीन 3, राइट? सो यहाँ पर अगर अभी आप देखोगे तो अगर हम लोग एक रेशियो क्रिएट कर सके, मैं ये बोल सकता हूँ दैट अभी का सैलरी अगर पहले अभी 25% इंक्रीज हुआ है तो पहले का सैलरी अगर उसका 4 था, अभी का सैलरी अभी हो जाता है 5. ये उनका रेशियो है, ओके? और उसी क्वेश्चन में बोला जाता है. सो सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर आप ऐश का सैलरी देखोगे यहाँ पर, तो ऐश का सैलरी 1/8 इंक्रीज हुआ है. इसका मतलब क्या है? अगर उसका पुराना सैलरी 8 था, अभी कितना हो गया? अभी द न्यू सैलरी विल बिकम 9, 1 मोर, बिकॉज यहाँ पर 12.5% का उसको इंक्रीज मिला है, राइट? ऐश के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ अगर आप देखो कि अभी का जो प्रेजेंट सैलरी और न्यू सैलरी है, ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी है, देयर इन द रेशियो 4:5, एंड ऐश का जो ओल्ड सैलरी है, न्यू सैलरी इज इन द रेशियो 9:8:9. नाउ अगर आप यहाँ पर 4 और 8 को सोचोगे, आप ऐड कर दोगे, ये गलत हो जाएगा बिकॉज 4 और 5 एक अलग रेशियो है, 8 और 9 एक कंप्लीटली डिफरेंट रेशियो है. हम रेशियो में आपस में ऐसे ऐड नहीं कर सकते. बट हम क्या बोल सकते हैं दैट पहले का अगर अभी का सैलरी अगर 4x था तो अभी कितना हो गया? 5x हो गया. सिमिलरली ऐश का अगर पहले का था 8y सैलरी तो अभी कितना हो गया? अभी मीन्स अभी करेंटली नाउ कितना हो गया? इट इज 9y. तो इससे एक रिलेशनशिप तो एस्टैब्लिश हो जाता है. क्या ना? 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 28,000. तो यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, सो इट विल बिकम x प्लस 2y. 4 मैंने कॉमन ले लिया और मैं 4 को 28,000 से डिवाइड कर दूंगा, विल बिकम इक्वल टू 7,000. आई होप यू अंडरस्टूड. मैंने दोनों से 4 को कॉमन ले लिया और 4 को इधर डिवाइड कर दिया. तो ये मुझे एक रिलेशनशिप तो मिल गया x और y के वैल्यू का, राइट? तो अब लेट्स अंडरस्टैंड मुझे क्या निकालना है. अभी न्यू सैलरी मींस मुझे निकालना क्या है? बहुत जरूरी है. व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट माय फ्रेंड इज बेसिकली 5x का वैल्यू, जिसके लिए मुझे चाहिए x का वैल्यू. ये मुझे, दिस इज व्हाट आई हैव बीन आस्क्ड, दैट व्हाट इज अभी न्यू सैलरी. अगर सो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे द सेकंड रिलेशनशिप और एक्स और वाई के अंदर हम जो डिटरमिन कर सकते हैं दैट इज ऑन देयर न्यू सैलरी. उनका नया सैलरी अगर आप देखोगे, व्हाट इज देयर न्यू सैलरी?
अगर उनका न्यू सैलरी के बारे में बात करें तो एक अगर 5x है, दूसरा कितना है 9y है न्यू सैलरी जो है। और क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ बोल रहा है दैट ऐश का सैलरी अभी नए सैलरी का 120%, ऐश का जो न्यू सैलरी है इट बिकम्स 120% दैट ऑफ अभी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐश का जो सैलरी है उसमें इजीली उसको 20% का ग्रोथ मिल रहा है। 20% का ग्रोथ का मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा, ये जो ग्रोथ है ये किसके ऊपर है, ये अभी अभी का न्यू सैलरी के ऊपर है, बिकॉज वी आर नाउ नॉट कंपेयरिंग ऐश का नया और पुराना सैलरी, वी आर नाउ कंपेयरिंग द टू न्यू सैलरीज। इसका मतलब ये हुआ दैट अगर अभी का सैलरी है 5 तो ऐश का सैलरी विल बी 1 मोर, दैट विल बी 6, दैट इज द न्यू रेशियो। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ दैट 5 डिवाइडेड बाई 6 जो रेशियो है दैट इज अदरवाइज इक्वल टू उनका जो सैलरी का रेशियो है दैट इज न्यू सैलरी का, दैट इज 5x डिवाइडेड बाय क्लियरली 9y। तो यहां से मुझे अगर आई सॉल्व फॉर y क्यों y, बिकॉज मुझे यहाँ पर y को रिप्लेस करना है सो दैट मुझे पूरा आंसर x में मिल जाए। So that means I'll say that y is equal to 5x divided by 9 into 6 divided by 5. So obviously 5 5 cancel हो जाता है, या 9 इसको cancel कर देता है, एक 2 में एक 3 में। So what do I get, x और y का relationship, that y is equal to 2x by 3. So what should I do? I should replace this over here, right? So I can say that x plus, यहाँ पर 2y के जगह I'll write 2, y के जगह I'll write 2x divided by 3. This is the value of x is equal to what, 7000. तो यहाँ पर बिकॉज डिनोमिनेटर में 3 है, मैं इसको भी 3x डिवाइडेड बाई 3 लिख देता हूँ, मेरा काम इजी हो जाएगा। यहाँ 4x हो जाएगा। सो व्हाट डू आई गेट ओवर हियर, 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 7x। और डिनोमिनेटर में कितना है, इफ आई एम एडिंग इट 3 इज इक्वल टू व्हाट, 7000। तो क्लियरली 7 इसको कैंसिल कर देगा 1000 में। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3000। मुझे क्या निकालना था, वी नो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट 5x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x नाउ, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 15000। तो यहाँ पर हम आप देखो यहाँ पर हम क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किए। परसेंटेज का ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जहाँ 25%, 12.5% को हम 1/8 और 1/4 में एक्सप्रेस कर रहे हैं ताकि हमें जल्दी रेशियो मिल जाए। रेशियो प्रोपोर्शन का हमने कॉन्सेप्ट यूज किया जहाँ पर हमने टेबल से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, राइट। और हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है द मोमेंट यू राइट दिस इज, ये 4 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 9 है, तो लगता है कि हमें शायद ये दोनों रेशियो भी पता है। यू डोंट नो यहाँ पर ओल्ड दोनों का ओल्ड जो सैलरी है उनका रेशियो क्या था, ये आपको पता नहीं है। नए का भी आपको पता नहीं था जब तक बताया नहीं गया दैट ऐश का नया सैलरी जो है वो 120% ऑफ अभीस न्यू सैलरी है। वहां से हमने ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया दैट इट इज 5 and 6। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। So friends, now it is time that we look at the second question. What is the second question? Let's have a look. Second question जो है, it's a very simple question. It says a number x is mistakenly divided by 10. तो एक कोई भी एक नंबर आप ले लो, पकड़ लो, that number is 100। उसको आप बाय मिस्टेकन इट इज डिवाइडेड बाय 10 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 10। तो एक्चुअल क्या होना चाहिए था, मल्टीप्लाइड बाय 10 होना चाहिए था। अगर वो एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय 10 होता, इन दैट केस दिस अमाउंट वुड हैव बीन 1000, दिस वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने किया 100, मैंने उसको डिवाइड कर दिया बाय 10 विच बिकेम इक्वल टू 10, करेक्ट। तो ये है मेरा करेक्ट वैल्यू, प्लीज अंडरस्टैंड, और ये वाला मेरा जो है रॉन्ग वैल्यू। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट। व्हाट इज द परसेंटेज एरर, गलती में कितना परसेंटेज हुआ है। तो क्लियरली जो आपका न्यू आंसर है और आपका जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए उसमें आपका डिफरेंस कितने का आ रहा है, द डिफरेंस इज 990। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज मुझे दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दिस इज द डिफरेंस 990। और करेक्ट आंसर कितना है, द करेक्ट आंसर इज दिस, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय 100% विल गिव मी माय परसेंटेज चेंज। तो क्लियरली 100 और 100 यहाँ 2 0 कैंसिल कर देगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। सो मैंने कितने का एरर किया है फ्रेंड्स, माय एरर इज 99% का मैंने एरर किया है। आई होप यू अंडरस्टूड ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। यू फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू दैट यू कुड हैव अचीव्ड, देन व्हाट इज द रॉन्ग वैल्यू दैट यू हैव अचीव्ड, एंड आफ्टर दैट फाइंड द डिफरेंस ऑन द करेक्ट वैल्यू, जो भी करेक्ट होना चाहिए था, दैट गिव्स यू अ परसेंटेज एरर, right? So friends, my name is Neil and I'm over here at the ODCH Apti channel to help you build your foundation of quantitative aptitude, which you face all the time, especially when you're writing competitive exams, especially when you are also writing those test papers, which helps you qualify for your campus, for your jobs. Friends, remember why we started this channel, because this channel is a way for students to not get disqualified because of poor aptitude foundation. So friends, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा दैट अगर these videos are enough, please keep watching these videos, keep solving questions. I'll keep coming up with videos to help you crack your desired companies or desired institute. And also at the same time, अगर if these आपको लगता है कि इनसे ज़्यादा आपको attention चाहिए, personal attention चाहिए, in that case please do not feel absolutely shy to click
on the link given, which will lead you to our WhatsApp group, and from there I'll take you through a master class जहाँ पर हम पर्सनल अटेंशन देके स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं so that they can build their foundation. So thank you friends, I'll see you in the next video. तब तक के लिए keep practicing and stay healthy.